Hello, welcome to My Sakhi, the CSR initiative of Jacksonpal Pharma. Scan the QR code on the screen to reach the website mysakhi.in to learn more about the initiative My Sakhi. नमस्ते, जक्सनपाल फार्मा के माय सखी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं, मेनोपॉज से संबंधित भावनाओं में बदलाव। Today we discuss a problem that most ladies fear. We need to be mentally prepared to face the menopause with confidence. In this session today, we explore the emotional aspects of menopause and learn strategies to navigate this life stage with grace and positivity. जैसे कि हम सब जानते हैं, मेनोपॉज जिंदगी का एक प्राकृतिक हिस्सा है, लेकिन इसके साथ कई शारीरिक और भावनाओं से जुड़े बदलाव आते हैं। आज हम इन बदलाव को अच्छे से समझेंगे और इन्हें अपनाने के तरीके सीखेंगे। For this public awareness session, Dr. Ragini Agarwal, menopause specialist from Gurugram, will discuss these issues with Dr. Poonam Punya, a clinical psychologist who is an expert with many years of experience helping people break through and get their mental health back on track again. हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम गुड़गांव की मेनोपॉज एक्सपर्ट डॉक्टर रागिनी अग्रवाल और साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम पूनिया से बात करेंगे और वो मेनोपॉज के इमोशनल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगी और बताएंगी कि इस नए फेज को पॉजिटिविटी के साथ कैसे पार किया जा सकता है। The session today is courtesy MEMUP, the latest in menopausal hormone therapy by Nari Division of Jacksonpal. We welcome and thank all those who have joined us as participants today. This web series, Menopause Dialogues, is a part of Jacksonpal's ongoing CSR initiative to raise awareness and promote better management of women's health. आज का सेशन मेमअप के सौजन्य से है, जो जक्सनपाल के नारी डिवीजन द्वारा मेनोपॉज हार्मोन थेरेपी में नया और बेहतर है। To make today's session more interactive, please keep your questions ready or type them in the chat box, which the experts will address at the end of the session. Make good use of this opportunity to interact with the experts. The best questions asked will be eligible to win a prize. अपने प्रश्नों को पहले से तैयार रखें और चैट बॉक्स में टाइप करें। आपके द्वारा पूछे गए बेस्ट क्वेश्चंस को पुरस्कार मिल सकते हैं। आज के सेशन को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम लाइव पोल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। आइए मिलकर मेनोपॉज को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस बनाते हैं। We welcome and express our gratitude to the experts today. Dr. Ragini Agarwal, a well-known gynecologist and menopause specialist, is an expert in aesthetic, functional, and urogyne surgery, and she specializes in female sexual health. She is director AA Derma Science, Complete Clinic for Women's Health in Gurugram, Haryana. She is the incoming Secretary General of Indian Menopause Society. She is passionately involved in spreading public awareness on women's health. Dr. Punya is a fully qualified and registered psychotherapist at Gurugram with many years of experience helping people break through the mental health and get their mental health back on track again. Her areas of expertise include stress, difficult relationships, teenage conflicts, OCD, or self-esteem. She is an expert in cognitive behavior therapy, psychodynamic therapy, psychoanalytical therapy, and the right person to guide us through this phase of life. We now hand over the session to Dr. Ragini Agarwal, ma'am, to kindly begin the session. Over to you, ma'am. Thank you, Deepika. Thank you so much for your kind introduction. नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। मेनोपॉज एक अवस्था है जबकि नारी अपने हार्मोन से अकेली हो चुकी होती है। जिंदगी का ये दूसरा चरण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय यह जिंदगी का दूसरा चरण उसके अपने लिए भी है। घर की, परिवार की जिम्मेवारियों से कहीं मुक्त होती हुई, और बच्चे अधिकतर बड़े होकर निकल जाते हैं, लेकिन
ये जो मुक्ति, जो कि ये फ्री टाइम है, वो कई बार अवसाद में भी बदल जाता है। आपके वे जाते हुए हार्मोन, खास करके ईस्ट्रोजन, जिससे कि औरत का शरीर चलता है, उसके ब्रेन में भी जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि औरत पूर्णतया ईस्ट्रोजन से ही बनी हुई है। इन सब का जो उसके ऊपर असर होता है, साथ में खालीपन का, घर में खालीपन और ईस्ट्रोजन के जाने से जो अपने अंदर एक खोखलापन हो जाता है, ये सब कहीं कहीं कभी कभी उसको एक दूसरे पथ पर भी ले जाता है, जहाँ खुशियों की बजाय निराशा और अवसाद होता है। कंफ्यूजन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये समझना कि अब क्या है, ये जिंदगी खाली हो गई है, ऐसा नहीं है। ये वो समय है जब आपको खुश रहना चाहिए और अपनी उन सब हॉबीज को जो कि आप छोड़ चुके हैं, जिसके लिए आपने सोचा कि अब तो ये मुझे मिलेंगी ही नहीं, उसके लिए आप दोबारा प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन कई बार अपने आप ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की भी जरूरत होती है। ये समझने की जरूरत होती है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसके लिए आपको दवाइयाँ चाहिए या कोई और इलाज चाहिए, बल्कि आपकी सखी के तौर पर एक क्लिनिकल साइकोथेरेपिस्ट आपका मदद कर सकती है। आज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पूनम पूनिया, जो कि इस क्षेत्र में जिनको महारत हासिल है। चलिए आज इस डायलॉग को थोड़ा मोनोलॉग में बदलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, इसमें बीच बीच में इंटरप्ट करने से बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपको इस बात को, जो कि बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि मेंटल फॉग और ये सब आता ही आता है अधिकतर लोगों को, तो मैं चाहूंगी अगले 15-20 मिनट तक डॉक्टर पूनिया आपसे सीधे बात करके आपको इसके बारे में समझाएं और बताएं, और उसके बाद हम आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पूनम जी, आपका स्वागत है और ओवर Thank टू you, यू। ma'am. Thank you so much. Thank you so much for this opportunity. I'll try to explain things in 15 minutes. उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेन से ज्यादा डिस्कशन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबके क्वेश्चंस और सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं और उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। और कोई भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग ही एक्सपर्ट हैं और हम ही वो हैं, बट वी इनवाइट ऑल ऑफ यू टू डिस्कस विद अस एंड टॉक अबाउट इट। जितना आप लोग बात करोगे उतना ज्यादा सोल्यूशन निकल कर आएंगे। I'll show you a small presentation regarding this, and then I'll share my experience with menopause. So this time we have slightly changed our approach. हमें ये नहीं करना menopause को कैसे handle करना है, menopause is a problem. तो हमने अपनी approach को ही change किया है। Rather than saying menopause को कैसे handle करना है, हमने decide किया है कि हमें इस menopause को embrace कैसे करना है, इस transition को हमें प्यार से और दिमाग से कैसे handle करना है। तो इसलिए हमने इसका नाम भी लिखा है Embracing Life with Transition. सो ट्रांजिशन एक बार नहीं होता है, बहुत बारी ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन थोड़ा सा इसलिए हमें हिला देता है क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स वीक हो जाते हैं और मेंटली फिर हम बहुत ज्यादा लो फील करने लग जाते हैं। और मेंटली लो फील करने का मतलब है बॉडी ऑलरेडी लो है, मेंटली लो होने के बाद हम सारा ही हमारा लोड जो है वो नीचे होता चला जाता है। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू एम्ब्रेस लाइफ ड्यूरिंग दिस फेज. So I'll just introduce you a little bit. So definition, I'll not define everything कि इतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि मीनोपॉज की 3 स्टेजेस होते हैं, पेरी, प्री एंड मीनोपॉज. सो पेरी मीनोपॉज इज जो हम 30 के बाद, आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं कि अब जो ये वाली जनरेशन है 30 के बाद दे फील सम चेंजेस इन देयर बॉडी, क्योंकि आपके 90% एक जो 30 तक बनते हैं वो रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ योर हार्मोनल चेंजेस. Then the second stage is premenopausal. This stage can remain from 8 to 10 years. और इसका जो एवरेज एज है जो इंडिया में है 42, 47 और 55 तक है. तो ये तीनों स्टेजेस बहुत ही डिफरेंट हैं और तीनों स्टेजेस का अपना एक बहुत बड़ा रोल है. जब हम बोलते हैं माइंड के ऊपर इसका इतना क्यों इम्पैक्ट आ रहा है, माइंड के ऊपर इसका इम्पैक्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि ये माइंड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है.
मेनोपॉज को हम इसीलिए इतना ज्यादा हम कर रहे हैं, कॉज ऑफ मेनोपॉज, कि बायोलॉजिकल कॉज क्या है। बायोलॉजिकल कॉज एज डॉक्टर रागनी एक्सप्लेन कि हमारे जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन इज फूड फॉर आवर बॉडी, फॉर फीमेल स्पेशली। आपकी बॉडी का एक एक पार्ट एस्ट्रोजन इम्पैक्ट करता है, स्टार्ट फ्रॉम योर ब्रेन टू योर लंग्स टू योर गट टू योर लेग्स टू योर थाइज, एवरीथिंग। आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडीज बताऊंगी इसमें कि कैसे ये एस्ट्रोजन हमारी बॉडी को इम्पेक्ट करता है, और हमें पता ही नहीं होता कि ये मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं या नहीं है। हम उसको कनेक्ट करते हैं किसी और चीज से और हम फिर लैंड कर जाते हैं कहीं और। मैम, बहुत कॉमन सिम्टम। स्लाइड्स, सॉरी टू इंटरप्ट। या स्लाइड्स नहीं दिख रही हैं आपको? नहीं मैम, मैं स्लाइड्स नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया, पहले था स्लाइड्स, नाउ इट्स नॉट ये देयर। स्लाइड्स तो आ रही हैं। आ रही है मैम? हाँ, मुझे दिख रही है। ओके ओके ओके, प्रोबेबली मेरे को नहीं दिखी फिर, सॉरी अबाउट दैट। नो प्रॉब्लम प्लीज। सो हम कॉमन सिम्टम जो हम लोग आजकल, पहले तो मेनोपॉज के बारे में शायद बात भी नहीं होती थी, आई एम ग्लैड कि एटलीस्ट अब लोग बात करने लगे हैं इसके बारे में। वर्ल्ड वाइड ओनली 60,000 स्टडीज हैज बीन डन ऑन मेनोपॉज, जिसके बारे में हम बात नहीं करते। और कितनी सारी औरतें एक एक कॉर्नर में रोती रहती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं, और हम उसको रिलेट कर देते हैं बहुत सारी अलग चीजों से, और एजुकेट भी नहीं करते हैं हम अपने लोगों को कि मेनोपॉज क्या है, पेरीमेनोपॉज क्या है, और इस टाइम पे आपको क्या चाहिए। तो जो कॉमन सिम्टम्स हम बहुत ज्यादा हम करते हैं डिस्कस, वो करते हैं हम: हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट, मूड चेंजेस, इरेगुलर पीरियड्स, इम्पैक्ट ऑन बोन्स, आपका बोन डेंसिटी कम हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, यूरिनरी चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म चेंजेस होते हैं, बेली फैट इंक्रीज हो जाता है, यू फील सो ग्राउची, यू फील इरिटेटेड, एंजाइटी, बॉडी ऑर्डर, लैक ऑफ सेक्स ड्राइव, dryness, migraine, clenching, frozen shoulder and hip joint. ये causes बहुत common है. I will share my story with you so you will understand more. 6-7 months से I have been going through this phase, but it never clicked in my mind that this can be menopause, or this can be pre-menopause. What happened during sleep? I got jerks, and when I got jerks, एक और दो बार I felt, oh, it is normal, okay, शायद मैं नींद में डर गई थी या मैंने बुरा ख्वाब देखा था. So I was so normal, I took it in a normal manner. But ये 3-4 बार जब मेरे साथ हुआ, then I landed to a neurologist. Neurologist से बात की, उसने कहा कि it's a stress. as such stress नहीं है, touch wood, पर maybe I am dealing with stressful situations, तो maybe stress हो सकता है एक reason. तो she said नहीं, अगर आपको बार बार ये आ रहे हैं, आप 1 महीने तक ये दवाइयाँ लो, antidepressant, and after that we will see that where is the problem. Okay, I have taken B12, I've taken vitamin D, calcium, and then antidepressant. Mild SOS I have started taking, because I got scared and it never clicked in my mind, being in the profession, surrounded by so many experts, that it can be perimenopausal. For a month, I have taken these medicines. Nothing happened. Again, I felt jerks. And then again, I visited the same doctor. She said, now you should go for MRI. I said, MRI? I'm a claustrophobic. So I need so much courage कि MRI करवाने के लिए मैं उस मशीन में ही नहीं जा सकती हूँ. उसके लिए मुझे कम से कम नहीं तो मुझे इंजेक्शन लेना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू डू. 2 बार गई, 3 बार गई, मैं MRI मशीन देख के ही डर जाती हूँ. सो आई केम आउट. आफ्टर दैट, what happened, my clenching started on top of that, and I got so scared कि ये हो क्या रहा है, एनर्जी लो, पूरा दिन एनर्जी लो है, clenching started. One day I went to see Dr. Agni, and she asked me very normal question, तुम आज बहुत बीमार लग रही हो, थकी हुई लग रही हो. I said, हाँ, मेरी बहुत क्लेंचिंग हो रही है और उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे जॉ पेन भी है, मुझे ये जॉ एकदम लॉक हो गए थे. She said, तुम्हें तो पेरीमेनोपॉजल है. I said, seriously? She said, yes, you go for therapy, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो तुम्हारा ये लॉक खोलेगी, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगे. You won't believe, for 6 months, I was just post to pillar, visiting all the specialists. I went to a cardiologist, I went to a neurologist, I went to all kind of doctors, but finally I got to know कि ये पेरीमेनोपॉजल है. अगर मैं डॉक्टर आगने के पास उस दिन नहीं जाती, शायद ये भी डायग्नोस नहीं होता, और मैं शायद कितनी जगह जाती रहती. So it means we are not aware of it.
अगर being we are in such a profession surrounded by so many experts, अगर मुझे अवेयरनेस नहीं है तो मुझे नहीं लगता हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोगों की इसकी अवेयरनेस है। तो जब हम सारी चीजें देखते हैं कि आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आर वर्किंग ऑन इट, तो ये कॉज और सिम्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। सो आप जब मेंटली प्रिपेयर रहते हो तो चीजों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो तो हम एज ए ह्यूमन वी हैव दिस हैबिट ऑफ ओवर थिंकिंग। एक प्रॉब्लम को हम 10 जगह बना लेते हैं। मैंने तो ये भी सोचना शुरू कर दिया था कि शायद मुझे किसी दिन ब्रेन हेमरेज होगा और मैं मर जाऊंगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा था, कोई कॉज ही नहीं मिल रहा था। But finally, thank God, the day I met Dr. Agni and she suggested me this. And after that, touch wood, I'm much better. And I know my symptoms. I know how to deal with it. And I'm working on it continuously, physically, mentally, dietary. I am taking care of it. So this is my journey. If my journey is like that, so your journey must be similar like me, maybe a little different with the different symptoms. बट हम सबको शेयर करनी चाहिए ये चीजें और अवेयरनेस बहुत ज्यादा लाने की जरूरत है। सो इस सब का इमोशनल इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, जो हम इतना बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्यों पड़ता है, मेनोपॉज हमारे ब्रेन पे क्यों इम्पैक्ट करता है। as we started with this कि hormonal estrogen is food for your brain। एस्ट्रोजन आपके ब्रेन को, हाइपोथैलेमस को एक मैसेज देता है जिसमें वो कहता है कि आप मुझे, आई नीड फूड, एग्स। एस्ट्रोजन इज फूड फॉर हाइपोथैलेमस। अगर वो नहीं मिलता है तो आपका हाइपोथैलेमस एक मैसेज जो आपके यूट्रस और आपकी ओवरीज को दे रहा होता है, वो मैसेज आना बंद हो जाता है और वो लिंक वीक हो जाता है। जब वो लिंक वीक होता है तो यू फील लो, यू फील ड्रेन्ड आउट एंड यू फील इमोशनली यू फील डिप्रेस्ड, मूड स्विंग होने लग जाते हैं, एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, कॉग्निटिवली आपकी चीजें चेंजेस होने शुरू हो जाती हैं, आपकी मेमोरी इम्पैक्ट होती है। मेमोरी में आप यू स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग सम पार्ट ऑफ थिंग्स, नॉट फुल्ली बट यस। कई बार लगता है अच्छा मैंने ये चीज कहाँ रखी थी, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा आप अलमारी खोल के खड़े रहते हो, मैं कुछ लेने आई थी पर कहाँ गया। तो ये सारी चीजें बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं बिकॉज हमारे ब्रेन को वो फूड नहीं मिल रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल लो होता जा रहा है ड्यू टू द एज फैक्टर, ड्यू टू योर पेरीमेनोपॉजल स्टेज। तो वो सारी चीजें आपके ब्रेन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं। तो उसमें आपको ब्रेन को कोई प्रॉब्लम है वैसा नहीं है, दिस इज अ फेज एंड यू शुड अवेयर ऑफ इट। जब हम ये सारे एस्ट्रोजन लेवल जब आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है तो उससे सीधा सीधा आपका डोपामाइन इम्पैक्ट होता है, आपका सेरोटोनिन इम्पैक्ट होता है। ये वाले जो हॉर्मोन्स हैं, ये सारे हॉर्मोन्स मिलके आपके ब्रेन को चलाते हैं। देन यू फील ओ मैं पागल होती जा रही हूँ, मुझे साइकोलॉजिकल इशू है। और गलती से आपने किसी को आपने बोल दिया कि ये इश्यूज है और सामने वाला अगर आपको कह देता है साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो यू फील ऑफेंडेड कि साइकोलॉजिस्ट के पास मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ जो मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊँ, क्योंकि हम हमेशा एक टैबू से चलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इट इज इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दीज फैक्टर्स, दीज सिम्टम्स एंड योर स्टेज ऑफ पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल whatsoever, but you need a support system every time. Then how do we manage? हम बहुत सारी चीजें करते हैं मैनेज। हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं, डाइटरी, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, HRT। आई डोंट नो इन इंडिया मैम, आई डोंट नो अबाउट दिस कि HRT हम कितना कर रहे हैं और कितना होता है। सो प्लीज यू विल प्लीज डिस्कस दिस। नॉन हार्मोनल ऑप्शंस लाइक ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, हर्बल सप्लीमेंट्स आते हैं, एक्यूपंक्चर है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं। ये यहाँ पे लिखने में बहुत इजी है कि आप माइंडफुल एक्टिविटी स्टार्ट कर दो, आप ये कर लो, आप वो कर लो, बट सबसे पहले इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो योर बॉडी, टू नो योर ब्रेन, टू नो योर स्टेट। हम लैश आउट करते रहते हैं, हम बच्चों पे चिल्लाते रहते हैं, हम सब पे चिल्लाते रहते हैं, बट आपको लगता है कोई समझेगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट, हम खुद ही नहीं समझते। और हमारे यहाँ तो अगर आप किसी से बात भी करते हो, सपोज इफ यू टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, इफ यू टॉक टू योर हस्बैंड, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम समझे तो हम लोगों को समझा सकते हैं। एजुकेट योर सेल्फ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, देन यू कैन मैनेज योर सेल्फ। My next slide is not coming. Lee, 1 second, can you help me with the slide? So there are recognize your symptom. To prepare yourself, there are 3 P's.
which is very utmost important to know about it. Period changes, physical changes, past history of depression or trauma. Periods changes, आपको देखना आपके periods irregular है, regular है, color change हो रहा है, कितनी देर में आ रहे हैं, तो please focus on that. That is a very important thing. Physical changes, आपका body weight increase हो रहा है, आपके belly fat increase हो रहा है, आपको dryness आ रही है, आप grouchy feel कर रहे हो, आपको itching हो रही है, आपके जॉइंट फ्रोजन शोल्डर इज अ न्यू स्टडी बाय ड्यूक यूनिवर्सिटी कि आपके जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर हो जाता है आपका, आपके यूरिनरी फंक्शंस पे इम्पैक्ट आता है आपका, सारी चीजों पे, आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आता है. तो फिजिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for people who has already past history of depression or trauma. They have to be little extra cautious क्योंकि जब ये वाली स्टेज हिट करती है तो आपका डिप्रेशन और ट्रॉमा सरफेस होने लग जाता है और इंक्रीज होने लग जाता है. तो इट्स इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दीज फैक्टर. Then there is another ties model for you. It is important to understand. आपका थिंकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है. आपका थिंकिंग पैटर्न, जब हम कहते हैं ब्रेन फॉग का मतलब होता है यू फील ब्लॉक्ड. आपको लगता है चारों तरफ से सब बंद हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, और उस चक्कर में आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हो, आप ब्लॉक होना शुरू हो जाते हो. मेरे एक दो पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना करियर ही छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, दैट वी आर नॉट एबल टू फोकस, और हम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने बॉसेस की चीजें नहीं ले पा रहे हैं, हमसे डेडलाइन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इट मीन्स वी आर इन डिप्रेशन एंड वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट फंक्शन. सो वो क्या होता है, आप एक और ऐड कर रहे हो प्रॉब्लम अपनी लाइफ में. फॉरगेटफुलनेस, व्हिच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Identity, do I know who I am? So sometimes you forget कि मैं कहाँ जा रही हूँ. You feel so lonely because ये जिंदगी का ऐसा वाला मिडिल एज क्राइसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी जिंदगी का ऐसा फेज होता है जहाँ पे आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट एक तरफ हो जाती है और आप अकेले रह जाते हो, और आप यू आर विदाउट नथिंग क्योंकि यू वर सो बिजी विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. और हम अपने ऊपर तो फोकस बहुत ही कम करते हैं, आई पे फोकस करते हैं, स्पेशली इंडियन वुमेन्स तो नहीं करती हैं. तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि इंडियन वुमेन के लिए कि दे शुड फोकस ऑन देयर आई. देन योर स्लीप पैटर्न, जर्क आना, आपको पैनिक अटैक्स आना, आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहना, यू डू नॉट फील रिफ्रेश्ड. सो दिस फोकस ऑन दीज symptoms, it's important, very important. I'm sharing this with you, this is very important information. जब आप आपके मेनोपॉज से, यहाँ हम इंडिया में उतने चीजों पे फोकस नहीं करते, दिस इज नॉट इंडियन स्कैम, दिस इज आई हैव टेकन इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्टडी, कि वहां पे आप इतना हर चीज के अंदर जाते हो कि आप बिफोर मेनोपॉज आपके ब्रेन की कंडीशन क्या होती है और आफ्टर मेनोपॉज आपका ब्रेन कितना लो हो जाता है. तो ये जो रेड वाला पार्ट है, ये बहुत आपका रेड वाला पार्ट दिखा रहा है कि आपका ब्रेन इज वेरी हाई, न्यूरॉन्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं, आपके सेल्स स्ट्रॉन्ग हैं, बट द अदर पार्ट इज शोइंग दैट यू आर डिक्रीजिंग. तो जब आप डिक्रीज हो रहे हो और उसके ऊपर आपको पता ही नहीं है क्या करना है, तो उस केस में इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. So now I'll stop sharing my screen and I will discuss about पहले तो मैम प्लीज आप बताइए कि हम इंडिया में HRT कितना कर रहे हैं और HRT का क्या इम्पैक्ट होता है. देन आई विल टेक माय साइकोलॉजिकल बिकॉज इवन आई वांट टू लर्न अबाउट दैट. डॉक्टर रागिनी मैम, आई वांट टू नो अबाउट HRT, हम कितना कर रहे हैं इंडिया में और HRT का कितना, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ HRT? तो ऐसा है पूनम, HRT अगर सही समय पे दी जाए और सही ढंग से दी जाए, सुपरविजन में दिए जाए, तो उसके अपने फायदे होते हैं. HRT का जो सबसे बड़ा पीरियड होता है, इवन प्री मीनोपॉज में भी, जब औरतों को हॉट फ्लशेस, इंफ्यूजन ये सब शुरू होता है, उस समय HRT देने से उनको बहुत फायदा पहुंचता है. खास करके मीनोपॉज के बाद 5 साल जो होते हैं, जो 5 साल होते हैं, वो उनको हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं. ये जो समय है, उस समय HRT से काफ़ी फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि HRT में हम क्या दे रहे हैं, उनको ईस्ट्रोजन दे रहे हैं जिसकी उनको ज़रूरत है. तो उससे उनके मेंटल फॉग को करेक्ट होने में सहायता मिलती है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम सीधे ही HRT दे देते हैं. HRT के पहले नॉन HRT लाइक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और कंजेक्टिव बिहेवियरल थेरेपी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर मुझसे पूछा जाए
मैं HRT को एक वैसोमोटर सिम्टम को अगर हटा दिया जाए और किसी में भी फर्स्ट स्टेप पे देना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ की एक अवस्था है। अगर हम उस अवस्था को खुशी खुशी अपनाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही दूर हो जाती जब हम उसको बीमारी समझने Yes. नहीं आते हैं। True. मैं भी यहाँ पे चाहूंगी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में कुछ थोड़ा सा आप और डिटेल में बताएं कि किस ढंग से Yes. वो लोगों को हेल्प करती है। सी जो जब हम बोलते हैं कि मेनोपॉज सबसे ज्यादा आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है, और इतने सारी आपके सिम्टम्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं करते। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा और यू फील दैट यू आर अननेसेसरली डिप्रेस्ड और यू आर एंक्शियस और यू आर लैशिंग आउट, आपके मूड स्विंग बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो सीबीटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपी। सीबीटी में हम क्या करते हैं, सीबीटी इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आपके कॉग्निशन, आपके जो ब्रेन का रोल है वो बहुत बड़ा होता है। तो उसमें हम रूट कॉज निकालते हैं कि रूट कॉज क्या है आपकी पूरी लाइफ में, आपका क्या रहा है, आपको एंजाइटी ज्यादा प्रॉब्लम कर रही है या आपको डिप्रेशन हो रहा है, या आप किस स्टेज पे हो, मेंटल स्टेज पे। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपकी प्रॉब्लम पे काम किया जाता है। प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है दैट दिस इज योर प्रॉब्लम एंड इट इज इम्पॉर्टेंट। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आप ऐसे नहीं होता टेलर मेड है कि ये कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, आप सबके साथ ऐसा होगा, नहीं। आप इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले को क्या समझ आ रहा है। देयर आर फ्यू पीपल, उनको समझ आता है कि आप उनको सिर्फ एक आके आप उनको बता दो कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आप ऐसे 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 कर लो, दे आर वेरी गुड फॉलोवर्स, तो उनको बताना ईजी होता है। कुछ लोग होते हैं उनको अगर आप बताओगे तो वो कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड इट, सो लॉजिकली बताओ। तो लॉजिकली यही है कि कॉग्निशन मतलब आपका वाई कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो भी आपके ब्रेन में एक थॉट है वो थॉट आपकी शक्ल पे आता है, वो शक्ल पे आने के बाद आपके बिहेवियर में दिखने लग जाता है। और अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल से अब नॉर्मल की तरफ जा रहा है तो दैट इज एन अलार्मिंग साइन, एंड देन यू नीड टू विजिट अ थेरेपिस्ट हु विल टेल यू कि आपको अपने थॉट्स पे कैसे काम करना है। उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस नहीं आता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज योर डे। आप अपने लिए कर क्या रहे हो, आर यू डूइंग समथिंग फॉर योर सेल्फ, आर यू फॉलोइंग एनी हॉबीज, आर यू डूइंग एनी एक्सरसाइज। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपनी वेट लॉस पे काम करना है, क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे सोचते रहोगे, स्ट्रेस जब शुरू होता है, स्ट्रेस शुरू वैसे होता है कि जब आप एक जगह पे बैठे हो, आप एक ही जगह पे बैठ के यू आर जस्ट कीप थिंकिंग एंड यू आर इन अ लूप, और वो लूप कहाँ से कहाँ शुरू होता है। तो और जब ये वाली स्टेज होती है, इसमें जनरली हम पोस्ट टू पिलर रहते हैं, वी विजिट आवर पास्ट, ये इसने ये किया, इसने ये किया, तब ये हुआ, तब ये हुआ, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी। अच्छा, इसकी वजह से मुझे डिप्रेशन है, नहीं, ये सारी चीजें सरफेस होती है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और उस बिहेवियर थेरेपी में आपको ये बताया जाता है कि आपकी किस चीज का क्या कारण है, पास्ट से इसका रिलेशन है या प्रेजेंट से है, और कैसे आपको हैंडल करना है अपने आप को। हम बहुत बॉडी इमेज इश्यूज हो जाते हैं लोगों को, वेट लूज नहीं हो रहा होता है और बेली फैट इंक्रीज होने लग जाता है, तो बॉडी इमेज इश्यूज, ऐसे भी लोग होते हैं, आई नो फ्यू पीपल, दे आर सो कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी कि हम तो ये ले ही नहीं सकते, हम मोटे हो रहे हैं, अब कैसे करें, दे स्टार्ट क्राइंग विदाउट एनी रीजन, मेरी तो फिगर बहुत अच्छी थी, अचानक से खराब हो गई, मैं तो वर्कआउट भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। तो उनको ये समझाना पड़ता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के थ्रू कि आप प्लीज एक्सेप्ट दिस फेज। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी केस। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आप उस पर काम ही नहीं कर पाओगे। जैसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आपकी 50% प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। आप ये सोच के चलो, सो प्लीज एक्सेप्ट योर प्रॉब्लम्स, एक्सेप्ट इट दैट यू हैव प्रॉब्लम, एक्सेप्ट एंड देन मूव ऑन। उसके बाद आपकी जो इरिटेबिलिटी है, प्लीज, ये मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ कि आप छोटी सी प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले अपनी जॉब छोड़ के मत बैठा करो घर पे। जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप वर्किंग विद योर ब्रेन। बिजी रखो, जितना आप अपने ब्रेन को स्टॉप कर दोगे वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी। वो जो ब्रेन इमेज दिखाने का पर्पस वही था कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करो। एस्ट्रोजन तो वैसे ही कम हो गया है, जा नहीं रहा है, तो आप जब आप एक्सरसाइज करते हो और आप बहुत अच्छा, आप डाइट पे भी काम करते हो, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली, आपके न्यूरॉन्स जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। ये हम बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, पर कुछ भी नहीं होता। एक थॉट प्रोसेस आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है।
आप कहीं से भी कहीं पहुंच सकते हो। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे निकलना है इस प्रॉब्लम में से, आप निकल जाओगे। इट्स नॉट अ इट्स नॉट एन एलिमेंट, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ फेज। डॉक्टर आग्नि राइटली सेड इट्स अ फेज, और इस फेज को नर्चर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट, मुझे लगता है वुमेन जो है सबसे स्ट्रांग होती है, वो इतनी स्ट्रांग होती है, शी कैन हैंडल 10 times better than a man, and they can handle n number of activities at the given point of time। और आप इतने स्ट्रांग हो तो प्लीज सरेंडर मत करा करो छोटी छोटी चीजों पे कि अब हो गया, अब मेरे से समझ नहीं आ रहा, अब मुझे बच्चे देखने हैं, मुझे घर देखना है। नहीं, इम्पोर्टेंस अपने आप को दो। yesterday I was listening on podcast, doctor, very famous doctors, she said कि मेनोपॉज को हम इतना हावी क्यों होने देते हैं। मुझे जीना है, आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आई वांट टू लिव माय लाइफ, आई वांट टू सी माय ग्रैंड चिल्ड्रन। व्हाई विल आई क्राई, व्हाई विल आई सिट एंड क्राई? आई नीड अ path where I can walk and I can come out of it। I love myself। so ये वाला सेंटेंस है ना, I love myself, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी इतनी एज हो गई, हाय मेरी इतनी एज हो गई, क्यों हो गई भाई? रिस्पेक्टेड, इट्स योर बॉडी। हम पूरी दुनिया जिंदगी यहाँ नहीं बैठेंगे, बट रिस्पेक्ट इट ग्रेसफुली, एक्सेप्टेड एंड रिस्पेक्टेड। हम यहाँ पे जमने नहीं आए हैं, बट जो एज है उसको एम्ब्रेस, इसलिए हमने बोला एम्ब्रेस एम्ब्रेस एम्ब्रेस, रेज राइज शाइन लाइक अ फ्लावर। तो ये फेज पता भी नहीं चलेगा कब आया और कब गया। लाइक आई हैव सेड 6 months, यस आई हैव स्ट्रगल्ड 6 months एंड आई एम एक्सेप्टिंग इट। और वो एक सेंटेंस चेंज्ड माय लाइफ। वो दिन है, आज का दिन है, शायद मैंने मेडिसिन भी खाई, यस आई एम ईटिंग मल्टीविटामिन्स, आई एम ईटिंग मैग्नीशियम, आई एम नॉट डिनाइंग, बट उसके बाद मुझे स्ट्रेस नहीं हुआ। अच्छा ये हो रहा है तो अब मैं बैठ जाऊं, मेरा एनर्जी लो है तो आई शुड क्राई एंड सिट कि मुझे बीमारियां हो गई हैं। आई एम आउट ऑफ इट। तो हम अगर एक थॉट इतनी चीजें चेंज कर देता है, तो वो थॉट यहाँ पे डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ है, ब्रेन है तो सब कुछ है। आपकी बॉडी ब्रेन के हिसाब से चलती है, योर सेल्स, योर एस्ट्रोजन लेवल, सब कुछ रिकवर हो जाता है अगर आप यहाँ से स्ट्रांग हो। अगर आपने यहाँ से ही हार मान ली और सरेंडर कर दिया, तो आप नहीं हैंडल कर सकते कोई भी प्रॉब्लम। तो ये तो एक एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। सो एक्सेप्ट एंड लव योरसेल्फ, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आधा घंटा अपनी कहीं पे भी सोसाइटी में कहीं पे भी, प्लीज गो एंड वॉक फॉर हाफ एन आवर विदाउट योर ईयर प्लग्स। ईयर प्लग्स नहीं होने चाहिए, ईयर प्लग्स आपकी एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। तो प्लीज वो गो फॉर वॉक, गो फॉर जॉग। वो नहीं होता, अगर आप जिम पर्सन हो प्लीज स्टार्ट गोइंग टू जिम एटलीस्ट। अगर वीक में आप 4 बार कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, कुछ भी कुछ भी, आई एम नॉट इम्पोजिंग एनीथिंग, वॉट एवर योर बॉडी लाइक्स, वॉट एवर योर ब्रेन लाइक्स, स्टार्ट दैट। एनी हॉबी। हम हमेशा प्री ऑक्यूपाइड रहते हैं, अब मेरे बच्चे का ये, अब मेरे हस्बैंड का है, अब मेरा खाना, अब मेरी मेड, अब मेरी किचन। लीव इट, किसी ने नहीं बोला आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। हम पकड़ के बैठे हैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किचन हाथ से ना चली जाए, मेड हाथ से ना चली जाए, कुछ नहीं हाथ से जाएगा। कोई गोल्ड मेडल तमगा किसी को भी नहीं मिलेगा, बट ये बॉडी आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे। जिस दिन आपने अपने ब्रेन की, बॉडी की रिस्पेक्ट करनी छोड़ दी, बॉडी नहीं चलेगी। सो प्लीज आइडेंटिफाई करो अपने सिम्टम्स को। बिना आइडेंटिफाई भी आप प्लीज एक्सरसाइज करो, माइंडफुल एक्टिविटीज। बहुत हम बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, ऑल्सो इट्स नॉट ईजी ऑल्सो। सबसे पहले आपको अपना ब्रेन न्यूट्रल में लाना है, जहाँ आपके ब्रेन में कोई भी थॉट्स नहीं है। जब आपके ब्रेन में कोई भी थॉट नहीं है, देन यू कैन कनेक्ट विद योर सेल्फ, विद योर बॉडी, विद योर ब्रेन। तो वो न्यूट्रल पोजिशन आनी बहुत जरूरी है, तब आप मेडिटेशन कर सकते हो। सो मेडिटेशन सीखने जाने की जरूरत नहीं है कहीं से भी। सिट डाउन विद योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, डीप इनहेल करो, होल्ड करो, एक्सेल करो। एक 4 स्क्वायर एक्सरसाइज है, उसमें हम क्या करते हैं, डीप इनहेल करते हैं 5 times, फिर होल्ड करते हैं 5 काउंट तक, फिर 5 में एक्सेल करते हैं, 5 में रेस्ट करते हैं। तो 20 सेकेंड का एक साइकिल है, वो करो 5 या 6 बार, एंड देन सिट डाउन विद योरसेल्फ एंड फोकस ऑन योर टेम्पल, एंड देन स्टार्ट जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रेन कि आपके ब्रेन में क्या क्या चल रहा है। इमेज करो सब, आप वर्चुअली देखो कि कितने थॉट्स ऐसे जंप कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉपकॉर्न थ्योरी बोलते हैं। तो योर थॉट्स आर जंपिंग आउट फ्रॉम योर ब्रेन, फोकस ऑन दोज थॉट्स। फोकस कि क्या थॉट है, क्या डिस्टर्ब कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, राइट डाउन ऑन अ शीट, ये थॉट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसका सोल्यूशन किसके पास है? सिर्फ मेरे पास है।
और किसी के पास नहीं है, कोई नहीं आएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है हमारी सोसाइटी में, हम माई हस्बैंड डजंट अंडरस्टैंड मी। Is it possible that your husband will understand? You have uterus, you have estrogen. Why your husband will not understand? It is important to teach them also, but वो किस लेवल तक समझते हैं मुझे नहीं पता। This morning I asked my husband कि मेरी ये पोस्ट अपने LinkedIn पे पोस्ट कर दो। He said 15,000 people are following me. I said please पोस्ट कर दो, ज्यादातर लोगों के पास पहुंचेगा। You know what he said? And I was shocked. This is a very educated person. He said नहीं, मैं नहीं ये औरतों वाली चीजें पोस्ट करूंगा। How people will look at me. So can you imagine? On the other hand side, my son is 9. This presentation is made by him. So he was so much into biology. I don't know because of me or what, but he prepared this presentation for me. So it is a mindset. And a qualified person is saying this. So how can you expect कि हम किसी को सिखा सकते हैं? नहीं. It's me, myself, I, बस। इसको जितना नर्चर कर सकते हो करो। हमारी बॉडी है, हमने ही चलना है, कोई नहीं आएगा चलाने। और जितने दिन चलते रहोगे खुश रहोगे। सो प्लीज लव योरसेल्फ। मैं सबको यही बोलती हूँ, लव योरसेल्फ, दैट्स इट, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। सबसे बड़ी माइंडफुलनेस वही है। वंडरफुल। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर आप ही अपने आप को नहीं प्यार कर सकते हैं, आप ही अपने आप को इज्जत नहीं दे सकते हैं, तो कोई और कहाँ से देगा। सिंपल एंड स्ट्रेट एक शब्द में यही कहा जा सकता है। और मत भूलिए आप अकेले आए हो और अकेले जाना है। मीनोपॉज अपने आप में अपने आप को एक्सप्लेन करता है। हम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मी नो पॉज, हम नहीं Yes. रुकेंगे। उसने तो अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन कर रखा है। ये आपकी जिंदगी का जो दूसरा चरण है उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए है वो मी टाइम। टेक आउट दैट हाफ एन आवर फॉर यू। आपने बहुत कुछ किया है और आधा घंटा आप अपने लिए रखें। तो पूनम जी आपने बहुत ही अच्छे से बताया। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग लेते हैं। दीपिका आप कहाँ हैं? और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। समय हमारा हो गया है, घड़ी बता रही है। Ma'am, first of all, we would like to thank both the experts, Dr. Ragini Agarwal and Dr. Poonam Punia, ma'am. Such invaluable insights today. It was really a wonderful talk. And for the attendees now, please do ask your questions. One question is there in the chat box. I'll just read that out. But we do encourage you, please do take this opportunity, make use of it, interact with the experts. You will not get this opportunity again and again. We have a clinical psychologist with us, and that's a great opportunity to encash. Please do ask your questions. You know very well that we Yes. have a prize for best questions that are asked. So, Dr. Ragini ma'am, there is one question in the Q&A box by Rinku. She asks, mindfulness and meditation, do they help alleviate emotional symptoms? So I think this would go to Dr. Poonam Punia. यस 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 रिंकू, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब मैंने वही कहा ना, हम इतना माइंडफुल करते रहते हैं। माइंडफुल और इमोशनल, आपको मैंने बीच में एक एक्सरसाइज बताई है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना, थॉट से ही शुरू होती है। वो प्रॉब्लम्स जब आप लिखते हो और जब वो ब्लूप्रिंट आपके सामने होता है, उसमें से आधी प्रॉब्लम तो लगता है कि खुद ही क्रिएट की हुई है। तो उसको आप एड्रेस कर सकते हो लिख के, उसको सोल्यूशन देके, अगर वो सोल्यूशन वाइबल नहीं है तो उसका दूसरा सोल्यूशन देके। तो ये चार्ट अगर आप मेंटेन करोगे तो इट्स अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर थॉट। सेकंड, यू आस्क्ड दिस, वेट अ मिनट, you asked that mindfulness and meditation. Yes, mindfulness and meditation is very important. Why do we say meditation? Meditation is a medicine for your brain. हमारा brain 24 घंटे ऐसे चलता रहता है। अगर आप brain waves देखोगे, ऐसे 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 continuously चलता है। Meditation is a medicine to brain where you just control your thoughts. इतनी जल्दी नहीं होता। Suppose you're sitting today, आपको 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन 10 मिनट जरूर बैठे। जब वो स्ट्रेट लाइन आती है ना, अगर आपको गाड़ी चलानी आती है तो उसमें एक न्यूट्रल पोजीशन होती है। वो न्यूट्रल पोजीशन जब ब्रेन की आती है, थॉट आना बंद हो जाते हैं, तो आपका ब्रेन उसमें रिचार्ज हो जाता है, बहुत जल्दी रिचार्ज होता है। तो वो जो रिचार्ज होता है ना, वो आपके लिए एक फूड का काम करता है ब्रेन के लिए। तो आपका
ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता चला जाता है, क्योंकि आपके न्यूरॉन्स और आपकी ब्रेन वेव्स को थोड़ा सा पॉज मिला है, वो पॉज उसको रिचार्ज कर देता है, जैसे हम फोन को चार्ज करते हैं, इट्स लाइक दैट. सो मेडिटेशन वर्क्स लाइक दैट. एंड सेकेंड थिंग यू सेड, emotional symptom, identify your emotional symptoms. Sometime it is your childhood issues also surfaces during this time, your maybe anxiety, depression. So it surfaced this time. तो इसको identify करो पहले, कि identify करने के बाद yes certainly. दूसरा focus shifting एक exercise होती है. Focus shifting में हम क्या करते हैं, suppose you are so stressed, 15 मिनट तक आप एक ही टॉपिक पे बैठ के सोच रहे हो, है ये हो गया, है ये हो गया, और क्या कर रहे हो आप, अपनी बॉडी को अलार्म कर रहे हो, और आपकी बॉडी में बहुत जल्दी फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं. मेंटली जैसे आपने सोचा, फिजिकल चेंजेस शुरू हो जाते हैं. उस टाइम पे आपको फोकस शिफ्ट करना है. इमीडिएटली गेट अप, गेट आउट ऑफ द रूम, ड्रिंक अ वाटर, फ्रेश एयर में चले जाओ, इनहेल एक्सेल कर लो. वो भी नहीं होता, रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दो. वो भी नहीं होता, फोकस शिफ्ट कर दो. इफ यू नो सम मंत्रा, स्टार्ट चैंटिंग सम मंत्रा, स्टार्ट कॉलिंग योर फ्रेंड, टॉक टू देम. फोकस शिफ्ट कर लो. जब जो भी दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है उस पे, कोई थंब रूल नहीं है. वॉट एवर गिव्स यू सूदिंग इफेक्ट, प्लीज डू इट. इट इज इम्पॉर्टेंट टू बी हैप्पी, not too sad. That's important. I hope I answered your question. Right. Okay. and Good evening. Rinku How would many be- years after menopause do you feel? Dr. Agani, please answer this question. Good evening. How many years after menopause do you feel hot flashes, anxiety, and stress? ये तो कई बार मीनोपॉज आने के पहले ही शुरू हो जाता है. मीनोपॉज ट्रांजिशन एक शब्द है जो कि अगर आप हमसे पहले से जुड़े हो तो सबसे पहले एपिसोड में हमने नॉर्मल वर्ड्स को आपको बताया. आपकी ईस्ट्रोजन के लेवल की जो कमी है 35, 38, 32 कभी भी शुरू हो सकती है. 7, 8, 10 इयर्स एक मीनोपॉज ट्रांजिशन चल सकता है. 4 to 5 इयर्स चल सकता है. हॉट फ्लैशेस आपको 38, 40 की एज में भी आ सकते हैं. द सेम विद द एंजाइटी एंड स्ट्रेस. तो ये कहना कि उस कितने साल बाद, बल्कि मीनोपॉज होने के बाद धीरे धीरे तो ये चीजें सेटल हो जाती हैं, क्योंकि आपको आदत पड़ जाती है. अगर मैं ये बोलूँ कि 60 साल की लेडी को ये चीजें शुरू हो रही हैं, तो वहां पर मैं उसको क्लिनिकल डिप्रेशन का पार्ट बोलूंगी, उसको क्लिनिकल प्रॉब्लम का पार्ट बोलूंगी. उसको अगर ये हॉट फ्लैशेस की प्रॉब्लम हो रही है एक 60 साल की लेडी को, नई शुरुआत हो रही है, तो मैं उसे किसी कार्डियक डिजीज की प्रॉब्लम की शुरुआत बोलूंगी. वो मीनोपॉज की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. यूजुअली मीनोपॉज से 2 या 3 साल पहले ये होते हैं. हालांकि जैसा मैंने कहा और भी पहले हो सकते हैं, और मीनोपॉज के बाद 1 या 2 साल में ये सेटल भी हो जाते हैं. उसके बाद अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा यू आर सफरिंग फ्रॉम सम क्लिनिकल प्रॉब्लम और समथिंग एल्स. So instead of fearing of rising this change, you can view it's a nature's and essential part of our journey. And that's more important is, ये transition आपको एक growth भी देके जा सकता है. You can discover yourself. जो चीजें आपने शायद पहले ना की हो, you discover that कि I miss this part of my life. I know somebody who has started her career after 50. She came for therapy and she said, I'm so depressed. I'm not able to handle myself. And after that, suddenly she found out her hobby and she started, and she is now an entrepreneur. So आपके लिए बहुत beautiful phase है. इसको use करो, misuse मत करो, और अपने आप को discover करो that what is in this heart, in this body, which you can take out and make it a beautiful thing. So I think we do not have any more questions coming. So we'll finish it off. Yes, ma'am. So in fact, we had to take out some winners, and the winner is just one, that is Rinku. We No, had one two other chats we had in the chat box by Usha and Dr. Meenakshi, but those are praising the session, that it's a very informative and good session, praises for Dr. Punia. So same here from our side also. Thank you so much, Dr. Punia. Thank you, Dr. Deepika. Thank you so much. So now I'd just like to take you through our My Sakhi website, which is Jackson Paul's CSR initiative. Would like you to go and visit mysakhi.in, from where we are
giving you some insights into the adolescent, reproductive age, and menopausal women's journey, and what all problems they could be facing. So, Shenaz. यस सो हमारी वेबसाइट mysakhi.in पर जाए, जो महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए जक्सनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की एक CSR पहल है। ये पहल किशोरावस्था से लेकर मेनोपॉज तक जीवन के हर चरण में महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के प्रति हमारे समर्पण को दर्शाती है। This site is an extension of the ongoing CSR initiatives of Jackson Park, promoting women's health and hygiene. The company has already made positive impact by building sanitation facilities in Punjab, Haryana, and Uttarakhand, as well as raising awareness about menstrual hygiene for girls in government schools. ये वेबसाइट महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर केंद्रित जक्सनपाल के CSR इनिशिएटिव का एक विस्तार है। कंपनी ने पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण किया है और मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा करके सुधार किया है। So this website mysakhi.in provides you educational content with public awareness programs like the one today, which is led by medical experts to educate and raise awareness about women's health. Recordings of these sessions are available on the website. You can go to the website and watch the recording again of today's webinar. Also, you'll be able to find it there. We look forward to your active participation. Do help join us and help us in the pursuit to spread awareness and promote better health for women. mysakhi.in महिलाओं के स्वास्थ्य पर चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा शैक्षिक सामग्री और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करता है। इन सेशंस की रिकॉर्डिंग वेबसाइट पर उपलब्ध है। हम महिला स्वास्थ्य प्रबंध में सुधार और जागरूकता फैलाने में आपकी भागीदारी को बढ़ावा देते हैं। So अब जो नेक्स्ट वेबिनार आ रहा है इस बारी वेडनेसडे को होगा 11th of December. Normally we have this on Fridays, but please note it is going to be on Wednesday 11th December. Dr. Ragini will be in discussion about the topic of staying healthy at midlife. And there will be 3 experts from across India. पूरा इंडिया की तरफ से हम कवर करते हुए आ रहे हैं। नॉर्थ से डॉक्टर रागिनी अग्रवाल गुरुग्राम, सेंट्रल इंडिया से डॉक्टर ज्योति जायसवाल रायपुर, ईस्ट से गुवाहाटी से डॉक्टर ममता समर्श और साउथ में बेलगाम से डॉक्टर विनीता मेडगुड. So we look forward to you all joining us, and this is Wednesday 11th December 3:30 p.m. Please join with your friends and family, and also do visit our website and explore more on menopause. Thank you all so very much for joining in today, and thank you experts. Bye. मिलेंगे। Thank you so much. Thank you, Dr. Ragini. Thank you so much. Thank you.